Hi everyone. So INI-CET result is announced, and as usual, some of the people have scored great ranks. Some of the people are not happy with the result, though they have got decent rank, but still they are not happy with their result. Some of them are disappointed with their performance in the exam. NEET exam is also around the corner. We do not have much of a time for the NEET exam. So just to address all those and to celebrate the success, today I have invited Dr. Jayant Agarwal. Dr. Jayant Agarwal is very special for me. I mean, I have interacted with Jayant for more than 3 years now. Jayant has scored 25 rank in INI-CET exam in November 2021. So before I start, a big congratulations, Jayant. Thank you so much, sir. Sir, no words for. Thank you so much, sir. It was all because of you. So why I have specifically invited Jayant to talk to you people over here is Jayant is a perfect example of a student who has worked very hard during MBBS, who has written multiple exams, and unfortunately he did not get the desired result in first few exams that he wrote, but he did not lose hope. He is the perfect example that if you are determined, if you are ready to do the hard work, definitely you're gonna get success. So this interview is specifically for those students who were unable to get a desired rank in the INI-CET exam, and they are disappointed, they are disheartened that what will happen in the NEET PG 2022. Will you be able to crack it? So I think Jayant is a perfect example to talk about it. So Jayant, let's start this interview. First of all, a big congratulations on getting 25 rank in the most prestigious and I will say one of the most difficult exam across India, across all the stream. So how does it feel finally you were able to get what you were looking for since last 3 exams? Sir, it was unbelievable, sir. Sir, I looked the result 3 times and confirmed from all my friends. And sir, the 2-digit mark that I saw, sir, it was like हो गया बस अब खत्म अब खत्म हो गया जुलाई एम्स में भी मिस हो गया, नीट में भी मिस हो गया. अच्छा, तो Jayan, before we start, can you just introduce yourself about from which city you are, from which college you are? Yes, sir. And any special credit that you want to give to anybody? Sir, my name is Jayant Agarwal and I'm from SMS Medical College, Jaipur. I was a 4-year foundation batch course in DBMCI. So a special mention to all the teachers of DBMCI, especially sir Ashwini sir, Jay sir, Kameen sir, you sir, you were always an inspiration for me. Whenever I felt low or something like that, sir, I always, I didn't think thought twice before calling you. So sir, and sir Ankur sir helped me a lot, sir, in controlling my sleep cycle. Sir, in NEET last NEET and AIMS, I was not able to sleep. Sir, Ankur sir, literally sir, he conducted CBT sessions for me for one hour, and it was very helpful, sir. Sir, our coordinator, sir Amit Bhatia, sir, he was very compliant and very supportive. So, sir, yes, sir. Okay. तो जयंत एक बात बताओ, देखो यू आर ऑलवेज अ ब्राइट स्टूडेंट. मुझे हमेशा से देखा कि तुम बहुत मेहनत की, तुमने एमबीबीएस में भी काफी मेहनत की, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर में. मतलब हमें भी एक्सपेक्टेशन थी कि यू विल गेट अ गुड रैंक. एक अच्छी रैंक नहीं आई INI-CET जुलाई में विच यू आर लुकिंग फॉर. नीट में तो एकदम ही थोड़ा खराब हो गया. वैसे भी इतनी खराब रैंक नहीं थी, 1200 रैंक थी. कुछ बच्चों के लिए 1200 रैंक इज अ ड्रीम दैट हैज कम ट्रू, बट तुम्हारा जो प्रिपरेशन था उसके हिसाब से नहीं थी. तो किस तरीके, और ऐसे भी बच्चे थे, ऐसे भी स्टूडेंट्स थे, यू वर क्लोज फ्रेंड्स जिनकी सिंगल डिजिट रैंक भी आई, अर्जुन की सिंगल रैंक 2 आई. तो अब ऐसे में डिसहार्टन होना, डिसअपॉइंटेड होना बहुत बहुत ही कॉमन है. तो किस तरीके से यू वर एबल टू गैदर दैट करेज
कि मेरे को एग्जाम क्रैक करना है, एंड व्हाट वाज योर बेसिक स्ट्रैटेजी? सर माय बेसिक स्ट्रैटेजी वाज कि ज्यादा कुछ गलत नहीं हुआ है, आई हैव टू रिवाइज वन मोर टाइम एंड सर माय बेसिक थिंग वाज कि अब ठीक है, जो हो गया, लेकिन God has given me last chance, and it is enough motivation for me. Two times I've seen that desirable rank was not there. So, sir, it was my last chance. So I thought that this is the thing I to do. So all those students who are listening to that, this is what I keep on saying. Please remember, if you did not get the desired result or so-called a bad rank in the exam, it is okay to be disappointed, but it should not demotivate you. Rather, it should motivate you to work more harder so that you can get a desired result in the next exam. The result is in front of you. 1215, 1215 rank in the NEET, and he studied with all, he gathered all the courage, and now he has got 25 rank. Jayant, first tell me that there are some aspects that student ask me specifically, that those who are preparing, they look for the guidance. Is you were one person who was very regular with GTs. Yes, बहुत sir. सारे स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता कि जीटी कैसे देना होता है, तो कैन यू इलैबोरेट स्लाइटली ऑन दिस कि जीटी कैसे लिखें, उसको रिव्यू कैसे करें, गलत क्वेश्चन को पढ़ें, सही क्वेश्चन को पढ़ें? तो कैन यू जस्ट गिव अ ब्रॉड आइडिया अबाउट हाउ टू राइट अ जीटी? Sir, one common mistake I found that while interacting with my friends, I found that people do time management very early in early GTs. It's sir, time management is a thing which should be done after about 10-15 GTs. सर होता क्या है कि सर जब टाइम मैनेजमेंट का 10-15 तो जीटी नहीं देते बच्चे ये चैलेंज है। सर तो पहले तो ये बताओ कि जीटी देना इंपॉर्टेंट क्यों है? यस सर, सर जीटी में सर जीटी से सर दिमाग खुलता है, मतलब आपको पता चलता है कि क्या इम्पोर्टेंट है, क्या पूछना चाहता है टीचर, और आपको क्या आता है। वो सर लाइन सेम है, सॉरी, मैं तेरे को लेकिन क्रॉस फिर भी क्वेश्चन करूंगा बच्चे यहाँ पर। द बिगेस्ट करिए चैलेंज सर। स्टूडेंट फेसेस इज, उसको लगता है कि मेरे जीटी में कम नंबर आ जाएंगे और मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा, इसका क्या करें? सर सर डिमोटिवेशन का सर ऐसा है कि जीटी से ही आप सीखना है। अगर आप देंगे नहीं तो वो असली एग्जाम में कम आएंगे। तो वो तो सर मतलब स्टेप है, हमेशा सर सबसे पहले तो कम ही आएंगे, फिर उसके बाद ही बढ़ेंगे वो कभी। तो जब तक चालू ही नहीं करेंगे तो फिर वो बढ़ेंगे ही नहीं सर। मिरर है ना, तो इट्स अ मिरर, इट्स अ हाँ मिरर। सर, अगर अभी जीटी नहीं दिया तो एग्जाम में कम आएंगे डायरेक्टली। हाँ एग्जाम में वो एग्जाम में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो सर मेन जो जीटी का मुझे पर्पस जो शुरू के जीटीज में लगता है सर कि एक क्वेश्चन जो है, जैसे 200 क्वेश्चंस हैं, तो उनमें से सर 195 क्वेश्चंस आर बाउंड टू बी कम फ्रॉम नोट्स, कि आने ही है। आपको उसमें दिमाग लगाना है सर। जब सोचना चालू कर देते ना सर, जब एक बार आपने सोच लिया कि यार ये क्वेश्चन जो है ये मेरे नोट से बाहर है, एक आपका पहला इंस्टिंक्ट अगर ये आ गया कि ये वो नोट से बाहर है, तो वो शायद फिर आपको कभी वो आएगा ही नहीं। लेकिन वो कहीं ना कहीं नोट से है, आपको उसके बारे में सोचना है। और जब वो आपने सोचना चालू कर दिया ना उस क्वेश्चन के बारे में, आपने सोच लिया कि ये तो मैं करके ही रहूंगा, तो सर फिर वो होने लग जाते हैं क्वेश्चंस। अगर सर ये जो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा छोड़ते हैं ये काफी, तो सर वो ये होता है कि पहला इंस्टिंक्ट आया कि नहीं आता, तो फिर आपने छोड़ दिया। लेकिन मतलब मैक्सिमम सर मैंने सर 50 जीटीज दे दिए होंगे अभी तक टोटल में। सर मेरे टोटल मैंने क्वेश्चन 10 नहीं छोड़े होंगे सर सारे ही अटेम्प्ट कर देते हैं कीप योर कि अटेम्प्ट हाई। कुछ नहीं है। हाँ सर अटेम्प्ट हाई नहीं सर, उससे भी कि सोच के कुछ ना कुछ तो लगाना ही है कि उसका आंसर ये नहीं होना चाहिए कि यार यार ये शिट वो ऐसे सोच रहा था तो ऐसे हो जाता। द ब्यूटी ऑफ द तो एमसीक्यू इज द आंसर लाइज इन फ्रंट ऑफ यू। हाँ सर, तो जरूरी नहीं है वो स्ट्रेटली पूछेगा एग्जामिनर, लेकिन जिस दिन आपने फिर 10 जीटीज में आपने सोचना चालू कर दिया, चाहे शुरू के जीटीज में आपका टाइम कम पड़ जाए, लेकिन अगर आपने सोचने की आदत बना ली ना एक बार कि ये तो मैं क्वेश्चन करके ही रहूंगा, तो उसके बाद फिर सर टाइम तो फिर ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपने पहले टाइम की
कर ली कि जल्दी जल्दी करना है, तो फिर वो सर वो सोचना फिर भूल जाते हैं फिर कि फिर नहीं आ पाता फिर वो लास्ट में। तो यानी कि जीटी देना, रेगुलरली जीटी देना, उससे सीखना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और रिव्यू कैसे करना है, हाउ टू रिव्यू जीटी? सर दो मेथड्स हैं, वन तो कि यू आर स्टडिंग फ्रॉम जीटी एंड माय मेथड वाज सर कि द टाइम यू सेव इन जीटी reviewing is the time you read more. So sir, I used to quickly scroll all the questions I've done wrong, and then I used to, sir, my main motive was not to correct the answers which I have wrong, but to see why I have done wrong those questions wrong. We have to make 4 columns that the questions which came from notes but I did wrong, the questions which were completely out of the my current knowledge, questions I silly mistakes and did not attempt. So सर जितने क्वेश्चंस का वो जो कॉलम है जो कंप्लीटली माय नॉलेज से बाहर वाला होगा वो उतना ज्यादा अच्छा होगा। अपने को सिर्फ 2 कॉलम्स को ठीक करना है, सिली मिस्टेक्स और जो क्वेश्चंस मेरे को आने चाहिए थे लेकिन वो गलत हो गए। तो तुमने मेरे उस प्रॉमिस को पूरा किया कि ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं करना जो मैंने पढ़ा हुआ है। हाँ सर। हाँ, तो यस, तो आई मीन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, एंड विच आई ऑल्सो एम्फसाइज अ लॉट। एनीबडी हु इज वाचिंग दिस पर्टिकुलर इंटरव्यू, leave everything and do this promise to yourself that you will not do any question wrong in the paper that you have read, and you are not bothered about those that you have not read, because irrespective of the resources that you are using, everybody is a good teacher, everybody will try to cover maximum number of places, maximum number of content at one place. So rather than going into fear of missing out, let's go into JOLO, which is called as joy of leaving out, and focus on the things that you have covered. Very very good. Jayant, एक और चीज बता बच्चे, there is a very very common doubt that I get from the students कि सर मैं पढ़ रहा हूं बट मैं भूल जाता हूं, एंड जब एग्जाम को 10 दिन बचे हैं, 12 दिन बचे हैं, तो मेरे को समझ नहीं आता मुझे क्या पढ़ना है। एंड आई एम श्योर दिस इज द सेम चैलेंज दैट एवरीबडी फेसेस। सो हाउ यू वर एबल टू हैंडल दिस चैलेंज? सर मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी, आपने उसमें बोला था कि द थिंग यू रीड इन लास्ट 10 डेज वो लास्ट 10 डेज में डिसाइड नहीं होता, वो 6 मंथ्स पहले डिसाइड करना होता है आपको। तो सर आई मेड माय रिवीजन कॉपी which I used in my last 10 days. Sir, the how to make that copy is that कि सर जब फर्स्ट रिवीजन कर रहे हैं तो उसमें जब फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं तो पढ़ लिया, 7 डेज लग गए, ठीक है। फिर सेकंड सब्जेक्ट चालू कर लिया, जब सेकंड सब्जेक्ट खत्म करा तो फर्स्ट वाली जो कॉपी है उसमें से जल्दी से आपने हर सब्जेक्ट के 15 पेजेस बनाने, हर सब्जेक्ट के 15 पेजेस बनाने हैं कि आपको क्या क्या नहीं आता और वो आपको लिखना है। वो फिर सर अगली बार जब आप वो पूरा रिवीजन हो चुका होगा, जब पूरे मेन कोर्स हो चुका होगा, तो फिर उसके बाद वो एक बार कॉपी पढ़ेंगे और उसमें से फिर आपको लगेगा कि जो यार ये तो मेरे को एक बेसिक जो सबसे हार्ड चीज थी वो तो आ ही गई। अब जो बचता है शायद जो मेन कॉपी में से वो शायद और भूल जाएगा, तो वो आगे के सर मैं 10 पेजेस छोड़ के रखता था सब सब्जेक्ट के बाद में, तो वो 10 पेजेस में लिखता था फिर कि और भी ऐड होता जाता था। तो सर लास्ट में जाते जाते सर आईएमए सेट में सर एवरीथिंग वाज फ्रॉम माय 20th कॉपी नोट। मतलब more number of topic, more close to the exam you can revise, better will be your rank. हाँ सर। तो और सर जब 15 डेज में सर एनाट और सर्जरी खत्म होती है ना, तो सर पता चलता है कि एनाट और सर्जरी को कैसे रिलेट करना है। yeah, that is true. तो सर 6 मंथ्स में नहीं हो पाता। Yeah, I mean it is extremely important. I think मैं बहुत ज्यादा बोलता हूँ इस बात को कि लास्ट के 10 दिन में क्या पढ़ना है, बच्चे लास्ट के 10 दिन में डिसाइड नहीं करना, ये आज डिसाइड करना है। जयंत, अभी एक बहुत बड़ा चैलेंज है बच्चे, तुम सब लोगों को बहुत टाइम मिला पढ़ने का ना, है ना? तुम्हारा एग्जाम होना था जनवरी में, इट गॉट डिलेड, तो नॉर्मली जो 9, 10, 11 महीने मिलते हैं तुम लोगों को 1.5 साल से ऊपर मिला पढ़ने के लिए। तो ये बड़ा कॉमन डाउट है कि भाई 1.5 साल में तो बहुत अच्छी नॉलेज ले आएंगे, बट अब सडनली जो बच्चे नीट पीजी 2022 दे रहे हैं, सडनली उनको ऐसा लग रहा है कि उनके साथ तो बहुत ही नाइंसाफी हो गई है।
उनका एग्जाम तो मार्च 12 को है, एंड दे हार्डली हैव सम टाइम. तो व्हाट इज योर एडवाइस टू देम? ज्यादा टाइम मिलना अच्छी बात है कि कम टाइम मिलना अच्छी बात है? व्हाट डू यू थिंक दैट दे शुड डू? सर ज्यादा टाइम एक कांस्टेंट लेवल पे पढ़ना ज्यादा मुश्किल काम है. 3 महीने तो सर कैसे भी पढ़ ही सकते हैं सर. और जो सर अभी नीट एस्पिरेंट्स हैं 22 के, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये इस टाइम पे ना, जो आप सोच रहे हो वही बाकी सब भी सोच रहे हैं कि मेरा कोर्स नहीं हुआ तो बाकी किसी का भी नहीं हुआ है अभी. सब पढ़ना तभी चालू करते हैं जब पिछला वाला बैच पास हो चुका होता है. तो जब अगर सब सेम लेवल पे हैं तो 4 महीने ही पढ़ने हैं. तो जब 4 मंथ्स में वो रिजल्ट आ सकता है जो 1.5 years में आएगा, तो सर 4 महीने तो आप पढ़ ही सकते हो अच्छे से. पढ़ सकते हैं तो सर मतलब, मतलब अकॉर्डिंग टू यू 4 महीने में हाँ. पढ़ा जा सकता है? हाँ सर, मतलब सभी 4 महीने पढ़ रहे हैं ना, मतलब आप भी मतलब चार बेसिकली महीने पढ़ लग चार गए महीने और रहे भी हैं. 4 महीने. अगर मैं आपको 1.5 साल भी दे हाँ दूंगा पढ़ने के लिए तो पढ़ोगे तो आप लास्ट 4 महीने में हाँ ही. सर. अल्टीमेटली द नेट रिजल्ट इज दिस, हाँ वांट टू से. हाँ. Jayant, how important it is to remain motivated? Um, like I remember, though it was pretty late, but when I was preparing for my exam, Dr. Thamim took one of our class, and that changed my perspective. And I became so determined कि हाँ भी मेरे को एग्जाम क्रैक करना ही करना है टाइप्स ना. तो I feel that there are people in the life that puts an impact onto you. What do you think? How important it is for a student to have those mentors? How important student for is to remain motivated throughout the preparation? सर मतलब मोटिवेशन इज अ थिंग विच गोज अवे वेरी क्विकली. तो सर इंस्पिरेशन होना चाहिए, आई थिंक. सर आई लुक अपॉन यू सर. और मतलब एक बार हमेशा से सर आपकी वीडियोस भी आती रहती थी, मंडे मोटिवेशन टाइप, वो भी काफी था और वो भी करते रहते, देखते रहते थे. तो मतलब सर कि वो तो मोटिवेशन सर यही है कि आई थिंक कि सर शेड्यूल जो होता है ना, वो होता है मेरा मोटिवेशन. कि मेरे को 7 डेज में ही खत्म करना है, 14 डेज में ही खत्म करना है, 21 डेज में ही खत्म करना है, 28 डेज में ही खत्म करना है. तो यू शुड हैव अ ब्रॉड शेड्यूल, देन माइक्रो शेड्यूल, एंड देन वेरी वेरी माइक्रो शेड्यूल. की मेरे को अगले 2 घंटे में क्या खत्म करना है, मेरे को आज पूरे दिन का क्या टारगेट है, 2 घंटे में करना है, और उसको 4 घंटे में. और उसमें एडिक्वेट, आई नॉट से ब्रेक्स, बट स्पेयर टाइम. कि अगर कुछ चीज मेरे को 7 डेज में खत्म करनी है तो वो मुझे शेड्यूल 6 डेज का बनाना है, क्योंकि वो खत्म तो फिर 7 डेज में होगा. अगर मैं 6 डेज में सोचूंगा कि वो खत्म कर सकता हूँ, तो फिर 7 डेज में खत्म होगा. तो सर ये मोटिवेशन था, मतलब हमेशा से ऐसा ही पढ़ा है कि ये इतने टाइम में ये खत्म करना है, इतने टाइम में ये खत्म करना है, इतने टाइम में ये खत्म करना है. तो सर वो पता ही नहीं चला. और सर एक ये है कि सर पीयर मोटिवेटर्स थे सर, माय फ्रेंड्स ऑल. तो सर हम सब साथ ही पढ़ते थे काफी, तो एक दूसरे से बात करते रहते थे. और ये तो उसका काफी इम्पैक्ट रहा सर कि अ, अच्छा कंपटीशन, वेरी हेल्दी कंपटीशन था सर, मतलब कि तो इस वजह से भी ये मोटिवेशन था. Wow. Any, I mean, it's extremely important to have a healthy competition. I mean, when you have those peer competitor, the friends who have the same mindset and who are reading in the same way, that is definitely very, very helpful. Last question for you, Jayant. Let us assume that I am a student who is preparing for the NEET PG 2022, who is looking up to you, who has come to you कि सर मैंने आज तक ना कुछ नहीं पढ़ा और मेरे को ना एक डिसेंट रैंक चाहिए. बहुत, मैं आपकी तरह रैंक 25 नहीं चाहता. मैं ये चाहता हूँ मेरी 2-3 हजार रैंक, 4 हजार रैंक तक आ जाए. तो अगर आप मेरी जगह होते तो आप कैसे पढ़ते? आप कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ते कि मैं नीट 2022 के लिए यानी कि 12 मार्च तक अपने सब्जेक्ट्स को कर भी लूं, उनको रिवाइज भी कर लूं? किस तरीके से मैं वो करूं? क्या मैं क्वेश्चन बैंक यूज करूं? किस सब्जेक्ट को कहां से पढ़ूं? आपका क्या ओपिनियन है? यू आर फ्री टू से वट एवर कम्स टू योर माइंड. सर फर्स्ट थिंग इज कि कोर्स खत्म करना है पहले वीडियोस देख के. तो वीडियोस में काफी टाइम लगता है.
आई वुड से कि सर लाइव क्लास इज वेरी हेल्पफुल इन दिस, कि वो 2 दिन का जो सब्जेक्ट है वो सर 2 दिन में खत्म होगा, और वही सब्जेक्ट सर वो 5 डेज में खत्म होगा वीडियो से। और सर जितना क्रिस्प आपके पास मटेरियल है उतना अच्छा है। मतलब सर एक चीज, मतलब मैंने बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स टॉपर्स और ये रहे थे, और हम काफी बात करते रहते थे, तो मेरे को ये पता चला कि सर टॉपर ना सर ज्यादा पढ़ के नहीं होता, टॉपर कम पढ़ के होता है। जितना कम पढ़ा है ना जिसने सर, वो उसकी उतनी अच्छी रैंक आई। तो सर हम लाइव क्लासेस में काफी ये था कि लाइव क्लासेस से जितना जयंत, अपन। हमने ना एक पावर कोर्स किया था अभी थोड़े दिनों पहले ना, 40 दिन, 40 डेज मैंने बनाया था, एक 40 डेज नीट इन। एंड व्हाट आई रियलाइज्ड इज कि उन 40 दिन में हमने कोशिश की थी कि 19 के 19 सब्जेक्ट को कवर किया जाए। ऑब्वियसली टाइम थोड़ा कम था, मैं ये नहीं बोलूंगा पूरा का पूरा टाइम था, बट वी ऑल फैकल्टीज रियलाइज्ड कि उन 40 दिन में हमें जो इम्पोर्टेंट काम काम की चीजें पढ़ानी थी ना, वो हमने पढ़ा दी थी। And the students also appreciated that course a lot, those who were a part of that particular course. And I will say a lot of people were able to get a decent score. I will not say that the top rankers, but a decent score using those. In fact, like nowadays we are getting a lot of demand for that. तो जो तुम बात बोल रहे हो ना, आई थिंक ये स्टूडेंट्स टाइम लगाते हैं समझने में, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ज्यादा पढ़ने से रैंक नहीं आती, ज्यादा रिकॉल करने से। क्योंकि जब आप काम की चीजें, मैं ये नहीं बोलूंगा कम पढ़ो, उतना पढ़ो हाँ जितना एग्जाम में आता है, मतलब जो चीजें एग्जाम में पूछी जाती है। यस, गो एट। जी, जी। हम्म। हाँ सर, तो कम पढ़ना है, और वो कम लाइव क्लास से ही हो पाता है, क्योंकि सर वीडियोस में तो सब कुछ ही है, वो वीडियोस तो कुछ बचता ही नहीं है उसमें। तो लाइव क्लासेस से अपना सब कुछ खत्म करना है। उसके बाद सर जीटीज पे बहुत फोकस देना है, एटलीस्ट 10-12 जीटीज तो दे के जाना ही जाना है। उससे सर मतलब पता भी नहीं चलेगा कैसे कि वो क्वेश्चन करना आएगा। सर एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग सर, I heard from somewhere कि whenever you study, at least you should have a session which should last for 3.5 hours. अगर सर 3.5 hours आप बैठ के पढ़, मतलब 3.5 hours में you should sit on your table. If you want a break, you should get a head down or something in between the break, but you should not stand up from the seat. कि एक बार सर काफी इस बार होता है कि काफी लोग बोलते हैं कि अगर जीटी 2 सेशन में होता तो ज्यादा अच्छा स्कोर कर पाते, कि अगर 2-2 घंटे का 2 बार होता तो। लेकिन माइंड को ऐसा ट्रेन करना है कि वो 3.5 घंटे बैठ सके अपनी टेबल पे, और पूरे टाइम फर्स्ट से लास्ट क्वेश्चन तक सेम एनर्जी रहे। तो वो एनर्जी एक सेशन पूरे दिन में कुछ एक 3.5 hours का होना है इसमें। और सर मिनिमम जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस हो चुके हैं सर, एम्स तो बहुत स्पेसिफिक है फॉर लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसी के अराउंड रिवॉल्व होता है सब कुछ। आई वुड से सर कि एग्जाम डिस्कशन वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। एटलीस्ट 2 to 3 questions were from these discussion videos. And sir, one thing very important, if someone can do, is last 2 years FMG paper. Sir, FMG paper, sir, in last year INSET also, 2 to 3 questions were from the previous FMG, and in this INSET also 2 to 3 questions from FMG. And नीट तो सर बॉडी सेम है, तो वो तो काफी चांसेस है कि वो सेम टॉपिक ही आ जाएगा। तो एफएमजी पेपर आई थिंक कि सर वेरी जहां से अच्छी क्वेश्चन चीज मिले है अगर क्वेश्चन आप कर लो ब्रॉडली, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब पेपर कर प्रीवियस लो, ईयर। बिकॉज अल्टीमेटली टीचर्स तो मोर और लेस सेम ही है हर जगह के पेपर बनाने वाले। या सर या मेक सेंस। तुमने सब्जेक्ट्स के नाम नहीं बताए, टीचर्स एंड सब्जेक्ट्स, व्हाट इज योर रिकमेंडेशन दैट इफ स्टूडेंट हैव टू रीड? सर सर मैं मेरे सर अनाट, सर मैं 19 के बता दूं सर? पूरे बताइए। पूरे सर, अनाट फॉर अश्विनी सर। सर physio I liked Krishnan sir from Arrow, and Ashish sir also. I attended both, some topic from here and there. Biochem, Smiley ma'am is very good. Uh, Micro, Nasi sir and Sonu Pawar sir is very good. And GRG sir for pharma.
and Patho, Praveen sir is very good. और सर FM में विश्वजीत सर से करा था, और PSM में सर विवेक जैन सर से करा था, और ENT में संजय सर इज वेरी गुड. ऑफ्था में सर नेहा मैम एंड नेहा मैम से था, नेहा मैम से, और शाश्वत रे सर में तो उनसे था. और मेडिसिन के लिए सर आई अटेंडेड दीपक मारवा सर. I attended 2 to 3 classes of medicine from here and there. One recipe topic was taken by Thameen sir, and other topics I attended from Deepak Marwa sir. And surgery sir, Jay sir is gold standard. I think surgery to sir Jay sir की, radio to sir obviously sir आपकी, मतलब मैं एडवाइस बहुत ही ज्यादा अच्छे से करने जाता हूँ, क्योंकि सर उसमें रेडियो नहीं होती, उसमें पूरा प्रोटोकॉल्स बहुत सारे अच्छे अच्छे हैं, वो हिमोप्सिस और पल्मोनरी एम्बोलिज्म और सबके, तो वो सारे बहुत इम्पोर्टेंट है. ऑब्स करेंगे सर वो मैम साक्षी अरोड़ा मैम से करी थी. और pediatrics sir, Tikku sir notes, Pankaj Tikku sir notes are very good. So everything, almost everything came from his notes. And ortho, Sushil Vijay sir is very good. I attended his class in satellite class. And which subject? Dharma. Anesthesia's Swati ma'am class was there. So Swati ma'am class. Psyche sir, Praveen Tripathi sir came or to our Dharma. batch. So, Dharma sir, Manish Soni sir came to our batch. So, okay. So broadly, you have said about all 19 subjects. What about question bank or questions? The question bank, sir, questions I did all in my all 3 years, second, third, fourth year. I did all books, subject-wise books. Subject-wise books. All the books, Devesh Mishra sir book, GRG book, and Vivek Jain sir की book है, और surgery 6 sir, Deepak Marwa sir की book थी, Sakshi Arora ma'am की book थी, और for all the major subjects I did all the books. So basically individual subject-wise book से question bank तुमने complete किया. हाँ सर, वो जब आप एक ही टॉपिक के 100 क्वेश्चंस करते हो तो आपको वो, मतलब लास्ट तक सर हमें ऐसे क्लिक हो जाता था कि ऑप्शन देख के क्वेश्चन पता चल जाता था कि इसमें यही पूछेंगे. Worked very hard. Broadly, this is what I will say. हाँ सर, वो मतलब उस टाइम पे सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में काफी ऐसे करा था. फिर इंटर्नशिप में सर मैरो क्वेश्चन बैंक करा था, और लेकिन वो रिवाइज नहीं हो पाया था. जीटी सर आई गिव जीटी फ्रॉम, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, रिवाइज नहीं हो पाया था. तो ये स्टूडेंट्स को समझना पड़ेगा कि हमें रिवीजन करना इज एन इक्वली इम्पोर्टेंट पार्ट इन कंप्लीटिंग द कोर्स. जीटीस कहां से किए जयंत? GT, I majorly give GT from Marrow and Bhatia, but sometimes I give GT from all the institutes. Sir, I think sir, if you give GT from only one institute ना, तो sir थोड़ा सा bias हो जाता है. उस institute वो same questions होते हैं थोड़े से, तो थोड़े से switch करते रहना चाहिए सर थोड़ा GTs. Okay. Any image-based session advice that you want to give? If you sir, I attended Vibe. I attended in fourth year. Sir, it was very good. Whole 19 subject revision was done in 4-5 days, and I used to see it in about 2 to 3 hours. जल्दी से सर हो जाता था पूरा Vibe. तो वो लास्ट दिन में सर काफी सही रहता था कि वो सब कुछ एक बार हो गया आंखों के सामने. तो Vibe booklet was very good. Yes. Okay. All right. So thank you very much, Jayant, for such an elaborative discussion and about all the points. And see, सबसे important बात which I wanted to bring forward with this particular interview is कि if you have not produced the desired result in the first go, don't worry about it. Don't get demotivated and stop reading. Whatever hard work that you have done is gonna bear fruit one day or other. And whatever that is happening for the good. Just till the time you did not get what you wanted,
please do not stop. I always say this, do not stop till the time what you get, what you are looking for. And I'm sure that one day you will be getting success. Thank you very much, Jayant. And once again, a big congratulations, not just to you, but to your entire family, as well as to your friends. And now, I hope that you can relax and you have got Yes, sir. Thank once you, again sir. a big congratulations, dear. Thank you so much, sir.